Hello my dear students. As we all know that we have started this chapter metals and non-metals, where in your previous lecture we have discussed about physical states, luster and also malleability of metals and non-metals. So continuing the same topic, we will discuss today about ductility. Okay, so let us start studying about ductility, how metals are ductile, metals and non-metals are ductile or not. Okay, so let us start. Ductility. Okay, so ductility means what? Where elements can be drawn into wires. ओके सो अगर हम इसके बारे में बात करें है ना वायर्स के बारे में सो वी हैव इलेक्ट्रिक वायर्स एट आवर होम ओके सो वेयर गैजेट्स ऑल ओवर गैजेट्स लाइक फ्रिज टीवी इज कनेक्टेड ऑल्सो दिस thin wires where it can be used for fabric also where embroidery is needed है ना so you will be surprised to know that from just 1 gram of gold 2 kilometer long thread can be made. Isn't it amazing कि सिर्फ 1 ग्राम गोल्ड से आप लगभग 2 किलोमीटर लंबा एक थ्रेड बना सकते हैं. Such ductile a metal like gold is. Okay, so gold is a metal which is so ductile. Okay, so what could be the definition over here? The property of an element, the property of an element due to which it can be drawn into thin wires or it can be only drawn into wires. I would like to write over here only it can be drawn into wires. Okay, is known as ductility. And those elements who can be drawn into wires, that particular elements are called as ductile. ठीक है, तो जो एलिमेंट्स जिनमें ये प्रॉपर्टी होती है कि वो क्या कर सके, उनको खींच कर तान कर है ना मेल्ट करके या किसी भी तरीके से उन्हें वायर में कन्वर्ट किया जा सके है ना वायर्स में कन्वर्ट किया जा सके, उस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं डक्टिलिटी और ऐसे एलिमेंट्स को हम कहते हैं डक्टाइल. ओके सो जब कभी भी हम बात करते हैं डक्टिलिटी की, देखिए हमारे पास बहुत सारे ऐसे मेटल्स हैं लाइक सिल्वर, लाइक गोल्ड, लाइक एल्यूमिनियम, लाइक कॉपर, आयरन. सो दिस कैन बी ड्रॉन इनटू वायर्स है ना. दैट इज द रीजन दे आर यूज्ड इन आवर डेली लाइफ्स ऑल्सो है ना in various purposes for various purposes at various occasions also. ठीक है, so that is the reason metals are what they are very ductile. All metals are what? These are ductile. Okay, so ये सभी metals हैं. इसमें कौन से आ गए? आपका सिल्वर आ गया, गोल्ड आ गया, कॉपर आ गया, एल्यूमिनियम आ गया है ना. ये बहुत सारे ऐसे मेटल्स हैं जो कि क्या है डक्टाइल हैं. ऑन दी अदर हैंड if we talk about non-metals, these are non-ductile. We cannot stretch particular plastic, even a charcoal which is a carbon content, right, sulfur, we cannot drew them into wires. Can we? No. तो जहाँ इस प्रॉपर्टी का यूज़ नहीं होता उस वो नॉन मेटल्स को हम क्या कहते हैं नॉन डक्टाइल. दे कैन नॉट बी स्ट्रेच एंड दे कैन नॉट बी ड्रॉन इनटू वायर्स. ओके, सो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है मेटल्स की. हमारे पास इसके n नंबर ऑफ यूजेस है. जब हम उन्हें वायर्स में कन्वर्ट करते हैं तो अभी मैंने आपको बताया कि देखिए चाहे गोल्ड हो या सिल्वर हो, जब इनके बहुत लॉन्ग थ्रेड्स बनते हैं तो आपने देखा होगा जो राजा महाराजा थे है ना उनके जो पोशाक थे, जो उनके ड्रेसेस थे, उस पर बहुत खूबसूरत एम्ब्रॉयडरी की जाती थी विथ ओरिजिनल प्योर गोल्ड एंड सिल्वर. सो डक्टाइल होने की वजह से ही उन्हें क्या है बहुत अच्छे से थ्रेड्स में कन्वर्ट किया जाता है, वायर्स में कन्वर्ट किया जाता है. अगर हम हमारे घर में भी देखें तो ऐसे बहुत सारे आपको मेटल्स के तार मिल जाएंगे. इवन आपके यहाँ पे देखिए जो कपड़े सुखाने का तार होता है,
either that is made up of steel or that will be made up of particular iron, है ना. तो बहुत सारी जगह पर हम जहाँ मेटल्स का पर्टिकुलरली यूज़ करते हैं इन द फॉर्म ऑफ वायर. सो दैट इज़ व्हाई आई सेड ऑल मेटल्स आर व्हाट, दे आर वेरी डक्टाइल, एंड ऑन द अदर हैंड the non-metals are what, non-ductile. And the property says that the property of an element due to which it can be drawn into wires is called ductility. See, the definition is very important. It can come in the form of an MCQ, it can come in the form of true or false, it can come in the form of a short question where you need to identify that this particular definition is belong to which particular category. When particularly based on certain topics like ductility, malleability, sonority, इसके बिहाव पर भी आपको मेटल्स नॉन मेटल्स को आइडेंटिफाई या डिफ्रेंशिएट करने के भी क्वेश्चंस आते हैं. दैट इज़ व्हाई दिस टर्म्स, ओके, एंड अलॉन्ग विद देयर डेफिनेशन इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, आप इसको अच्छे से पढ़िए. डक्टिलिटी क्या है? ऐसे मेटल्स जो कि जिन्हें हम पर्टिकुलर ऐसी प्रॉपर्टी जिसको हम वायर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, और मेटल्स ऐसे हैं जिन्हें हम इजीली वायर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं. ऑन द अदर हैंड नॉन मेटल्स को हम नहीं कर सकते. दैट इज व्हाई दे आर नॉन डक्टाइल. ओके, नाउ लेट अस टॉक अबाउट द अदर प्रॉपर्टी, दैट इज कंडक्टर्स ऑफ हीट. ओके, कंडक्टर्स ऑफ हीट. Conductors of heat means what, which carry heat with them, or on the other hand we could say where heat can be passed from one place to another. Okay, that particular substances are called as, or that particular elements are going to be called as what, good conductors of heat, right? And those who do not have those elements which do not possess such property are what, they are bad conductors of heat. ओके, सो हमारे पास अगर हम मेटल्स की बात करें, है ना, तो मेटल्स में हमारे पास ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स है विच प्रूव्स दैट दे आर वेरी गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट. जस्ट हैव अ लुक एट योर होम इन द किचन, है ना. वी हैव प्लेंटी ऑफ यूटेंसिल्स दैट आर मेड अप ऑफ मेटल्स. व्हाई? बिकॉज दे आर वेरी गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट, है ना. वी हैव एल्यूमिनियम यूटेंसिल्स, वी हैव कॉपर यूटेंसिल्स, वी हैव स्टील, right? So we all this pan, all this pressure cookers, they all are made up of what, metals. But you might have noticed that when we just look at the utensil of a particularly of a frying pan or pressure cooker, the handles are not made up of a metal. Why? Because they are made up of what, plastic. Either they are plastic or they are made up of wood, because they are what, they are poor conductors or bad conductors of heat, है ना. तो हमने हमारे घर में देखा है कि जितने भी हमारे यूटेंसिल्स हैं, है ना, वो सारे मेटल से बने हुए हैं. क्यों? क्योंकि हीट बहुत अच्छे से वो प्रोवाइड करते हैं, अच्छे से क्या करते हैं, पास करते हैं, इवनली स्प्रेड करते हैं. सो इसीलिए मेटल्स क्या है, दे आर वेरी गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट. ऑन दी अदर हैंड उसके हैंडल्स अगर आप देखें, है ना, तो वो किससे बने हुए होते हैं, या तो वो प्लास्टिक से, और समटाइम्स इट इज मेड अप ऑफ वुड ऑल्सो. Okay, so the reason behind is what, since they are a poor conductor of heat, they do not absorb that heat, and the handles won't get what, heated up, and we can hold them very easily. एक बहुत ही छोटा सा एग्जांपल मैं आपको दूंगी. देखिए, अगर आपके पास में आयरन बार है ना, कोई आयरन बार है, आयरन की कोई स्टिक है, उसे अगर आप वन एंड से बर्नर पे रखिए और उसे बर्न करने दीजिए, तो जैसे ही वो बर्न होनी स्टार्ट होगी, आप देखिए, आप जब उसको उसका एंड पॉइंट टच करेंगे, वो भी बहुत जल्दी गर्म हो जाएगा. विद इन फ्यू मिनट्स आप देखेंगे कि उसका जो एंड पॉइंट है, लास्ट का जो पॉइंट है, सपोज करिए आपने यहाँ से हीट देना स्टार्ट किया है, तो ये जो एंड पॉइंट है इसको आप टच करेंगे ना, तो ये भी बहुत जल्दी गर्म हो जाएगा. यू कैन नॉट होल्ड इट, राइट. सो दैट इज़ द रीज़न मेटल्स आर व्हाट, वेरी गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट. यही अगर आप चारकोल ले लीजिए, चारकोल का अगर आपके पास कोई पीस है ना, उसको जब हम हीट करना स्टार्ट करते हैं, हमने देखा होगा कई बार, अभी हम तो कुकिंग में भी बहुत बार यूज़ करते हैं, है ना, वो एक फ्लेवर देने के लिए, एक फ्रूटी स्मेल देने के लिए हम अलग अलग वुड्स का चारकोल यूज़ करते हैं. तो जो वो चारकोल हम स्टार्ट करते हैं, या वुड को भी हम स्टार्ट करते हैं जलाना, तो वो सिर्फ वन एंड से स्टार्ट होता है जलना, लेकिन हीट देखिए एंड पॉइंट तक नहीं पहुंचती. आप आसानी से उस वुड पर्टिकुलर वुड को, उसके पीस को पकड़ सकते हैं एंड पॉइंट से, या चारकोल को भी आप देखिए सामने से वो पूरा रेड हो जाता है,
costly. The reason behind is that they are what? They are bad conductors of heat. Okay, so they are bad conductors of heat. So I would like to say over here, metals are what? All metals. Okay, all metals are what? Good conductors. Good conductors of heat. On the other hand, non-metals are what? They are bad conductors of heat. Okay, तो all metals में सभी examples आ गए. ठीक है, यहाँ मैंने इसीलिए लिखा है all metals are what? Good conductors of heat. On the other hand, non-metals are what? Bad conductors of heat. Okay, one more topic which is related to the same is about conductor of electricity. Conductors of electricity. Okay, so we all know that at our homes, just now I have said that electric wires are there just to connect our gadgets, whether it's a television, washing machine, fridge, right, mixer, any gadget, any particular appliance you can take. Okay, so all these appliances, all these gadgets, all this mobile phone and all, computer and all these are connected with electricity. And through electricity, what do we need? We need certain wires. Okay, right. So just now I have said कि when particular metals are having this property ductility, that means they can be drawn into wires, and thus they have what? They have very good. They are very good conductors of electricity. The best conductor, if you ask me, among metals. See, some metals are very good conductors and few are very very slow. हम ये कह सकते हैं हर मेटल जो है वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी नहीं है. कुछ जो है वो बहुत अच्छे हैं, कुछ बहुत ही स्लो है. तो यहाँ जो बहुत अच्छे हैं उनमें से है सिल्वर. ओके, अगर हम मेटल्स की बात करें तो सिल्वर इज व्हाट? इट इज़ द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. ओके, आपने सिल्वर बैटरीज के बारे में सुना होगा. ये बहुत ही ड्यूरेबल होती हैं, बहुत ही अच्छे से इलेक्ट्रिसिटी को जो है वो कंडक्ट करती हैं. तो सिल्वर हम बाकी सारे मेटल्स के कंपैरेटिवली इसको सबसे अच्छा मानते हैं. देखिए यहाँ पर द रीज़न बिहाइंड वाई वी डोंट यूज सिल्वर ऑन रेगुलर बेसिस, डेली बेसिस इज दैट सिल्वर इज क्वाइट कॉस्टली. Okay, and on the other hand, if we talk about for electric wires, what we use copper, we use aluminium, right? So copper, aluminium हम बहुत ही जनरल बेसिस पर हमारे डे टू डे लाइफ में देखिए, आप जितने भी आपके वायर्स दिखेंगे या तो वो कॉपर या फिर एल्यूमिनियम के आपको दिखेंगे, है ना. तो ये डिफरेंस है क्योंकि सिल्वर इज व्हाट? क्वाइट कॉस्टली एंड इट इज़ ऑन द अदर हैंड इट इज़ नॉट दैट मच अवेलेबल इन क्वांटिटी. उसकी क्वांटिटी उतनी नहीं है कि हम पूरे होल वर्ल्ड को उतने लार्ज प्रोडक्शन पर, उतने लार्ज स्केल पर हम फॉर आवर डेली यूज़ उसको यूज़ कर सकें. ओके, दैट इज़ वाई इट हैज़ very certain, very selective use when it comes to the property of conducting electricity. On the other hand, silver and copper are quite good as compared to the other metals that do not conduct that much electricity. Okay, तो कुछ बहुत ही स्लो है, और जैसे कि कॉपर और एल्यूमिनियम देखिए, दे आर वेरी गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. लेकिन अगर आप बात करें इनकी, तो यहाँ देखिए जब हम कॉपर वायर्स या फिर एल्यूमिनियम वायर्स लेते हैं तो इनकी कवरिंग कौन सी होती है? जनरली होती है प्लास्टिक की, है ना. तो प्लास्टिक की कवरिंग होती है. प्लास्टिक इज व्हाट? इट्स अ नॉन मेटल, प्रूविंग व्हाट? दैट प्लास्टिक नॉन मेटल्स आर व्हाट? दीज आर बैड और पुअर कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. ओके, जितने भी आपके स्विच बोर्ड्स हैं, है ना, स्विच केसेस है, वो सभी देखिए वो प्लास्टिक से बने हुए हैं. तो वो जब भी हम उन्हें टच करते हैं, वी डोंट गेट अ शॉक इंस्टेंटली. ऑन दी अदर हैंड, इफ़ यू आर नॉट हैविंग अ वेट हैंड्स और ऑल, तो नेसेसरी प्रिकॉशंस को अगर हम लें तो इन जनरल टर्म में देखिए आपके पास जितने भी आसपास के जितने भी स्विच बोर्ड्स होंगे, स्विचेस होंगे, वो किससे बने हैं? प्लास्टिक से. वाई? बिकॉज प्लास्टिक इज़ अ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है. देखिए, वेदर इट इज़ नॉट कंडक्टिंग बट स्टिल इट इज़ बीन यूज ऑन अ वेरी लार्ज स्केल, है ना. सिर्फ वायर्स को ओपन रखेंगे तो दैट विल बी वेरी रिस्की होगा ना. तो उसको कवर अप करने के लिए उसको हम
क्या हम ये कहें कि इस पर्टिकुलर इलेक्ट्रिसिटी के पोर्शन से हमें प्रोटेक्शन के लिए या कॉपर एल्यूमिनियम का जहाँ हम यूज़ कर रहे हैं वहाँ पर ऑन फॉर सेफ्टी प्रिकॉशंस व्हाट वी यूज़ नॉन मेटल्स फॉर एज अ कवरिंग ऑफ दीज मेटल्स. Okay, why? Because metals are good conductor of electricity, and to protect ourselves from getting a shock or getting harm, or for safety precautions, what we use as a covering of non-metals, because here non-metals are what? These are bad conductors of electricity. But मैंने आपको स्टार्टिंग में पढ़ाया है कि कुछ exceptions है ना. इन मेटल्स नॉन मेटल्स वाइल स्टडिंग देयर आर सर्टन एक्सेप्शंस जो कि यहाँ पर वर्क करते हैं. अब यहाँ नॉन मेटल में सारे ही नॉन मेटल्स जो है वो पुअर कंडक्टर है, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, एक्सेप्ट व्हाट? एक्सेप्ट ग्रेफाइट. ओके, एक्सेप्ट ग्रेफाइट. ग्रेफाइट is a very good conductor of electricity, and that is the reason where it is used. It is used in making what? In making electrodes. ठीक है, इलेक्ट्रोड्स बनाने के लिए ये ग्रेफाइट का जो है, ग्रेफाइट सेल्स जो है वो यूज़ होते हैं. इलेक्ट्रोड्स आपने देखा होगा कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के लिए यूज़ होते हैं. जब तक सॉकेट्स जुड़े ना हो इलेक्ट्रोड से कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी नहीं होता है. सो ग्रेफाइट इज एन एग्जाम्पल वेयर नॉन मेटल्स it is a particular exception which is a very good conductors of electricity. On the other hand, all the metals, these are what? These are conductors of electricity, but some of them are very good, some of them are very slow conductors. Okay, तो आई होप आपको ये 3 पॉइंट्स जो है वो समझ आ गए होंगे, है ना. अब यहाँ एक और पॉइंट जो है वो हम ले सकते हैं सोनोरस का, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है. ठीक है, अब सोनोरस का मतलब क्या है? Sonorous means the particular property of a metal to produce a ringing sound. Okay, so the elements here are producing a ringing sound. You might have noticed in our school also we have a bell, right? So that bell is made up of a metal and it's not made up of a wood or plastic, है ना. देखिए, मेटल्स जितने भी है उनका अपना एक रिंगिंग साउंड होता है, दैट इज अ वेरी गुड साउंड दे प्रोड्यूस. ऑन दी अदर हैंड नॉन मेटल्स जितने भी आप देखेंगे, चाहे वो प्लास्टिक हो, वुड हो, ओके, उनका एक बहुत ही डल साउंड होता है. साउंड होता ज़रूर है लेकिन डल साउंड होता है. तो कंपैरेटिवली मेटल्स के ये कैसे होते हैं? नॉन सोनोरस होते हैं. लेकिन मेटल्स, ऑल मेटल्स आर व्हाट? दे आर वेरी सोनोरस. ओके, ऑल मेटल्स आर वेरी सोनोरस, जिसको हम सोनोरिटी भी बोलते हैं. ओके, सोनोरिटी भी बोलते हैं. टू प्रोड्यूस अ रिंगिंग साउंड, एक रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस होता है, उस रिंगिंग साउंड को हम कहते हैं सोनोरस होना. ओके, तो सोनोरिटी क्या है? एलिमेंट्स विच प्रोड्यूस अ रिंगिंग साउंड आर नोन एज व्हाट? सोनोरिटी, एंड द प्रॉपर्टी इज नोन एज व्हाट? सोनोरस. सो हम चाहे एक कॉइन ले लें, है ना, उस कॉइन को भी आप देखिए, अगर आपके हाथ से वो नीचे गिर जाए, इट प्रोड्यूसेस अ वेरी गुड रिंगिंग साउंड, right? So all metals, they have this particular ringing sound, and this property is nothing but what? Sonority. On the other hand, अगर आपके हाथ से कोई प्लास्टिक का, जैसे ये प्लास्टिक का, ये नीचे ड्रॉप भी कर देगा तो बहुत ही डल साउंड आएगा. प्लास्टिक नीचे गिरेगा तो भी डल साउंड आएगा, है ना. लेकिन किसके कंपेयर में कह रहे हैं हम? स्टील के. अब देखिए, प्लास्टिक और स्टील को एक साथ नीचे गिराइए, आपको आवाज़ में फ़र्क समझेगा. एक कॉइन को और एक पेंसिल को नीचे गिराइए, दोनों का साउंड में बहुत डिफरेंस आएगा. So non-metals are, they produce a very dull sound, and that is the reason they are non-sonorous. Okay, and on the other hand, all metals, they produce a very good ringing sound. That is why they are what? They are what? Sonorous in nature. Okay, and the elements are known as what? Property is known as what? Sonority. ठीक है, इसकी प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं? सोनोरिटी कहते हैं. Okay, so what we have discussed today, ductility, which is a property where it can be drawn into wires. Sonority क्या है? It produces a ringing sound. Malleability क्या थी? Where it can be drawn into thin sheets. बहुत important है, ये तीनों definitions ये पूछी जाती है. Luster क्या है? Means it gives a shine. Okay, it is shining property of a particular element. Okay, conductors of heat. So metals are very good conductors of heat, and non-metals are what? Bad conductors of heat. When we have studied about conductors of electricity, so few metals are very good conductors, like
silver and copper and aluminium. On the other hand, the other few are slow conductors of electricity. But non-metals, they are no what bad conductors of electricity, except graphite. Graphite is a very good conductor of electricity, and that is the reason they are used in making what? Electrodes. Okay. Sonorous is what? Where the property which tells us about that it can produce a ringing sound. Okay, so this ringing sound is nothing but sonority. So all metals are sonorous in nature. Okay, on the other hand, non-metals are what? They are non-sonorous, means they produce a very dull sound, right? So this we have studied. So many things are still remaining, so many things are need to explore and to be studied in this chapter. Okay, so I hope up till this you have understood it well. Do make necessary notes of each, as they are very important with respect to your syllabus and examinations. Okay, I hope that you have understood today's topic, student. Good day, take care.